हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक टू द लर्नर्स जो कल अपने आईसीएसई ग्रेड 10th बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं. दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर यू, जस्ट फॉर अ क्विक थिंग दैट ओके आई हैव डन एवरीथिंग. मैंने सब कुछ कर लिया है वॉट आई वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. और क्या आई हैव नॉट डन समथिंग? इफ नॉट, यू कैन रेफर टू द वीडियोज विच आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन द चैनल. थोड़ा स्क्रॉल करना, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा. So सबसे पहले what will be the course of video? We'll start with the sample paper, that is sample paper of 2024, the latest. उसमें मैं आपको questions के answers आपको बताऊंगी just to give you an idea कि कैसे answers लिखने हैं. And then in the last of the video I'll be talking about a comparative comparison between 2023 का sample paper और 2023 का board paper. उसमें कैसे कौन से क्वेश्चन सेम थे, कौन से नहीं थे, और 24 में सैम्पल पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, और आप जब बोर्ड में पेपर में बैठने वाले हो उनमें कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आप सैम्पल पेपर तो एक बार ही कर ही लो, उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यू विल गेट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विदाउट जस्ट वेस्टिंग टाइम. सो इट इज़ ICSE 2024 specimen paper. I'll quickly take you through the instructions. You all know it's a maximum 80 hour paper. आप बहुत सारे पेपर दे चुके हैं already. 2 hours का पेपर है, और it will, you will get 15 minutes to read and then start. Now let's start. Question number 1 says choose the MCQs. It's an MCQ question. So let's quickly see I'll quickly tell you the answers, और फिर हम questions के types के बारे में बात करेंगे. So loss of water in the form of droplets from hydrothoids is known as guttation. I have highlighted the answers. Synthesis phase in cell cycle is so because of the synthesis of more of DNA. While playing with a friend, Peter inserted a stick into his ear. He lost his hearing due to the rupture of. It said rupture of, मतलब breakage. Rupture मतलब किसी चीज में कुछ penetrate कर जाना. So it is eardrum. Prime source of fluorocarbon is refrigerant equipments. Oxygenated blood to the heart is supplied via coronary artery. Reason and assertion now. So the first one is D, option D. You can read the reason and the assertion. It's there on your screen. Second is age of restriction of marriage for boys and girls is boys 21 and girls 18. Now here it is a kind of a long this thing. Hari was fond of watching a fish in the aquarium. He also set up aquarium in his house along with number of fish. Also placed clownfish, which is a salt water fish. Now here they are talking about osmosis. आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है. So it's endo osmosis. क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाएगा and it will burst. The solvents used for dissolving chlorophyll while testing leaf for starch is ethyl alcohol. Structure related to storage of maturation of sperms in human males is epididymis. Sequence of DNA has 200 nitrogen bases. This is where you have to think. Fine, they are equal in number. जितने cytosine guanine के पेयर होंगे उतने ही adenine thiamine के पेयर होंगे. Fine. So it has 20 total, 100 इसके हैं तो 100 दूसरे के होंगे. Stress hormone in plants which function during drought. Drought मतलब जब सूखा पड़ जाता है. So it's abscisic acid, या फिर जब पानी नहीं मिलता उनको. Compressed CNG is proposed to be the best alternative for fossil fuel. Now herein, please read the answers. It's option only Q. Ground substances present in chloroplast is stroma. Stroma is the opening of stomatal pore, but this is trauma. Lata wanted to cross the road. She looked on either side of the road. अब here they want to. This is where they are testing कि तुमने जो पढ़ा है क्या तुम apply कर सकते हो. So yes, यहाँ पे तीन चीजें काम करेंगी. One, उसका सेरेब्रम काम करेगा, थिंकिंग की कैसे मूव करना है. अब इसमें बोला है शी लुक्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड. शी वांटेड टू क्रॉस, उसने दोनों साइड देखा एंड देन वॉक्ड डाउन द रोड. तो उसने सेरेब्रम सोचा. सेकंड, उसने सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंसेस द बॉडी. उसका सेरिबेलम काम कर रहा है और स्केलेटल मसल्स उसके लेग्स काम कर रहे हैं फॉर द मूवमेंट. सो दिस इज द आंसर. Now, question number 2 is name the following. The respiratory pigment in erythrocytes. I'll quickly take you through them. It is hemoglobin. Tissue that transports manufactured food, that is phloem. Part of the gene which in the presence of contrasting allele is not expressed, recessive. The duct which carries urine from urinary bladder to outside is outside the body is urethra. Collective term for protective membranes of brain is meninges. Arrange and rewrite the following. Snake, grass. Now it's I'll just quickly give you the answer for this. It's grass, then it is grasshopper, frog and snake.
Then we have pinna. Second one is pinna, malus, stapes, and cochlea. C is platelets, thrombin, fibrinogen, which is converted into fibrin. D is epidermis, endodermis, and cortex and xylem. Next is our morula, blastula, embryo, and it starts with embryo. So embryo, we have embryo, then we have blastula, then we have morula, and then finally we have the fetus. So fill in the blanks with a suitable word. Here we have a passage given जहाँ पे आपको blanks fill करने हैं. ये वाला question पिछले बार it was a location question, write the location of the following. ये वाला नहीं था, पर यहाँ पे they have given you a passage, एक पूरा event है यहाँ पे, पूरा process is there, and then you have to fill in the blanks. So technical terms will be A is myopia, B is long sightedness, C is convex, and D is concave, E is which of the part of the lens mentioned in this is hypermetropia. Next is choose the odd out of the following terms. So I've vegetable, first is a newspaper, vegetable peel, electric bulb, and animal excreta. So electric bulb is odd क्योंकि जो बाकी बच गए हैं they are all biodegradable waste. Then is renal pelvis, artery, cortex, and renal medulla. So it's renal artery because बाकी are the parts of the kidney. Urochrome, urea, keratin, and uric acid. So it's keratin. It is hair protein. Others are the components of urine. Oval window, cochlea, auditory canal, and round window. It's auditory canal because others are found in the middle region or part of the ear, you can say. Canal is, it's the external ear and the others are the internal ear. ADH, TSH, ACTH, and NADPH. So D part, all others are part of the internal ear if you have not heard. ADH, TSH, ACTH, and NADP because ADH, TSH, and ACTH are hormones. Match the following. I'll quickly give the answers to you. A is 6, B is 1, C is 44, D is 3, and E is 7. Rest are all just to confuse you. Next is question number 3. Now, here in question number 3 says a gene of red hair is recessive to gene of black hair. तो इसका मतलब black is dominant, comes with capital B, capital B. What will be the hair color of the person if he inherits the gene of red hair from the mother and gene of black hair from the father? So you have to make a complete cross here. So it says the answer would be color black, of course. So जब आप cross बनाओगे मदर को BB लेके और फादर को स्मॉल बी करके, तो you will get an answer. सब में कौन सा आंसर आएगा? Black is the dominant one, so that's the answer. State Mendel's law of dominance. You just have to write the law completely. What are homologous organs? The complete definition. Please do not change the definition according to yourself. जो बुक में दिया है थोड़ा सा वही follow करेंगे. Differentiate between phenotype and genotype, the ones which can be seen, genotype, the ones which are genetic arrangement of the genes. Draw a neat and label diagram of duplicated chromosome. मतलब आपको X वाला diagram बनाना है, single ही बनाना. Mention the exact location of corpus callosum. Now, when we talk about corpus callosum, exactly if we say it is present between the right and left cerebral hemispheres, दोनों को join करता है. The two hormones secreted by corpus luteum, progesterone, estrogen. Differentiate between menarche and menopause. Menarche, onset of menstruation, menopause, stoppage. Significance of placenta in the growth, provides all the nourishment. So these are long, I'm just giving you a hint, आप उसको elaborate कर सकते हो. Draw a diagram of human gametes that is chromosome, that carries chromosome X. थोड़ा confuse करके दिया है, sperm बनाना है हमें यहाँ पे. Explain the term photosynthesis. You can write equation, of course you can write. Potted plants have variegated leaves. जहाँ पे भी term मैंने आपको पिछले videos में भी बताया, wherever term variegated is used, मतलब they are talking about the leaves which have non-green and green part both present in them. So आपको देखते ही variegated देखते ही समझ जाना चाहिए chlorophyll की बात हो रही है यहाँ पे to prove its presence. So it's kept in sunlight. One of the leaves is plugged and tested. What will you observe? You will observe that non-green parts, they have not changed color and green parts have turned blue-black. Initial food prepared by green part is A and then converted to food by B by polymerization. Name the food A, that is glucose, and B, that is starch. Polymerization होती है तभी starch बनता है. Study the diagram here. Now, in previous two questions, they have given you diagrams to draw. यहाँ पे they have given you a diagram and asked questions. So this is a diagram.
आपके बुक का डायग्राम है जहाँ पे आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए. फॉर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन दे हैव गिवन यू दिस. नेम द गैस इवॉल्व दैट इज ऑक्सीजन. गिव एन एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोला. व्हाट विल हैपन इफ अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. जो पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है इट enhances the production of oxygen. Fine, so it will enhance the production. Process, speed up the process. Give the exact location of the genes. Exact location of the genes. It is a segment which is present at the what do you say, DNA. So you can say it is a component of DNA, fragment of DNA. So these are certain things. This next is karyo and cytokinesis. Karyokinesis, division of nucleus. Cyto, division of cytoplasm. Mention two features of the stage of anaphase during mitosis. Two significant features anaphase में क्या होता है? The chromatids they separate and they start moving apart. How many daughter cells are formed at the end of mitosis and meiosis? 2 and 4. Sorry, 4 and 2 बोलेंगे. So study the diagram here. Now here also you can clearly see that it is moving towards the sun. It's talking about phototropism. So name the phenomena. It's phototropism. Which part of the hormone? Auxin hormone helps in it. Name one stimulus that is positive response to roots but negative to the shoot. So that is geotropism. Significance of the scientific name of man, Homo sapien, vestigial organs जो काम नहीं करते. Give an example. State two structural differences between artery and vein. That you can do. बना के arterial human छोटा, vein का बड़ा. Mention two features of chroman, macroman. Please write the features specifically. Now herein you can see it's again a diagrammatic question. यहाँ पे biomedical waste. अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे hospital वाले waste दिए हुए हैं. So category is biomedical waste. Give one example of such waste. It can be any disposable needles and so on. What are they hard hazardous to human and animals? Give suitable examples. Yes, they are. Soil pollution करते हैं. Water pollution भी करते हैं if they are dumped in water. So there are multiple reasons. Define osmosis. Name sensory. Define osmosis you can do. Name two sensory cells in retina meant for light adaptation. Rod and cones. Mention the function of each. Cerebrum and cerebellum. Cerebrum, thinking, inking. Cerebellum, balance body. State any two objectives of Swachh Bharat to keep India clean and whatever you can quote from your book. Now diagram given here is a bloodstream. 1, 2, 3, 4 label करना है. अब यहाँ पे क्या पूछा है? मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2. 1 इज अगर उसमें डॉटेड लाइन दिखाते हैं तो इट्स ऑलवेज अ रेड ब्लड सेल विदाउट डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. तो हमेशा याद रखना कभी भी ये आए डॉटेड लाइन बीच में, इट्स रेड ब्लड सेल. सो 1 इज रेड ब्लड सेल, 2 इज अमीबॉइड शेप है, so it's white blood cell. So difference between white and red. What is the function of part 3 which is platelets? Function बता देना है. Label, name and label the part that is 4, that is plasma, in which all these are present. So this is all about the sample paper. This is the complete sample paper which I have discussed. देखो अभी इस पॉइंट पे ऑफ कोर्स यू नीड टू नो कि किसमें यू हैव टू वर्क एंड व्हाट यू नीड टू लीव एंड व्हाट यू नीड टू डू क्विकली. आप अपने आप को चेक करना कि आपने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या रहता है, कैसे. तो अगर हम पिछले साल का फाइनल पेपर और पिछले साल का सैम्पल पेपर देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, MCQs हर एक में मिक्सड अप है. 15 MCQs फिक्स इन मिक्सड अप फ्रॉम द होल बुक. नेम द फॉलोइंग कंप्लीट फ्रॉम द होल बुक. कोई ये नहीं बोल सकता ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा वो आएगा. इट्स एवरीथिंग. अरेंज द फॉलोइंग. ना जो अरेंज द फॉलोइंग है उसमें आई जस्ट क्विकली टेल यू कौन कौन से रेपिटेटिव हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 2023 के सैम्पल पेपर में दो चीज़ें कॉमन थी, इंटरनल ईयर का पैसेज और आई का लाइट का पैसेज. फूड चेन बहुत कॉमन है, सो प्लीज फूड चेन इसमें भी है. इफ यू सी ग्रास और ग्रास ऑपर वाला फूड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ईयर पैसेज अगर मैं पीछे भी जाऊं 2022 में भी देखूं सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर, उसमें भी फूड चेन आई हुई है. तो फूड चेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अरेंज द फॉलोइंग. सो कॉमन जो आई हैव सॉर्टेड आउट वुड बी आई एंड ईयर का पैसेज, फूड चेन्स, रूट हेयर एंड वाटर इनटेक, जिसमें वो बताते हैं कि रूट हेयर से आ रहा है, कॉर्टेक्स से जा रहा है, पहले द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड जाइलम फ्लोएम में जाके सॉरी फाइनली जाके फ्लोएम में इट्स देयर. इट्स बुक वाला डायग्राम, उसका सीक्वेंस आपको सिर्फ लेबलिंग्स लर्न करने हैं. रूट हेयर एंड वाटर इनटेक अगेन. रिफ्लेक्स आर्क वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा starts from sensory and then ends up in the receptor और सेंस ऑर्गन से रिसेप्टर तक. एग्जाम्पल्स पैसेज ऑफ द स्पर्म. एग का और स्पर्म का पैसेज. एग कहाँ बना एंड देन फलोपियन ट्यूब में गया, अगर यूट्रस में जा रहा है तो क्या हो रहा है, और फिर स्पर्म का पैसेज फ्रॉम
स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्टिस फिर एपिडिडमिस में जाएगा, स्पर्म डक्ट में जाएगा, तो पैसेज. सो पैसेज ऑफ स्पर्म एंड egg are also very important. Then नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑड वन कैटेगरी. ना ऑड वन कैटेगरी में बहुत सारे कॉमन थे, जैसे 2023 का सैंपल और फाइनल पेपर देखें तो वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट वेरी कॉमन. पॉल्यूटेंट्स, कैसे अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स की, जैसे इसमें भी दिया था न्यूज़पेपर दिस एंड दैट. फिर उसके बाद ईयर ऑसिकल्स और हॉर्मोन्स, तो उसमें से ऑड कैटेगरी निकालना. सो जो कॉमन अगर देखे जाएं, मैंने 2019-20 20 का सैम्पल पेपर, 20 का फाइनल पेपर, 23 का सैम्पल पेपर, 23 का फाइनल और 24 का सैम्पल पेपर, अगर सबको सम अप करके कुछ कॉमन देखते हैं तो दैट इज द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स और द वेस्ट, पार्ट ऑफ द ईयर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, हॉर्मोन्स एंड द डिजीजेज विच दे आर कॉजिंग. हार्मोन आ सकते हैं, उसमें से ऑड कैटेगरी निकालनी है, या फिर डिजीजेज दे सकते हैं, उसमें से ऑड कैटेगरी निकालनी है. सो ये कुछ बहुत कॉमन है जो सब में मिले हैं. वेस्ट टाइप, ईयर पार्ट्स, हॉर्मोन्स. यू विल से वेस्ट पाइप, पॉल्यूटेंट्स, ईयर ऑस. तो these are some recurring topics, so important ones. फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग, वो कॉमन है बेटा, वो मिक्सड अप है, इट इज फ्रॉम द होल बुक. फिल अप द ब्लैंक्स. अब 2023 में फिलअप है, लेकिन सॉरी 2024 के सैम्पल पेपर में फिल अप द ब्लैंक है, लेकिन 23 के सैम्पल पेपर में लोकेशन वाला क्वेश्चन है. लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग. अगर आपको लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो देखो मेरे, 2023 के देख लो, 2 के देख लो, 19, मतलब कोई सा भी पुराना उठा के देख लो. ऑड कैटेगरी की बात, सॉरी फिल अप द ब्लैंक्स की, ऑड कैटेगरी की, या फिर लोकेशन वाले क्वेश्चन की बात की है, तो वहाँ मैंने दिया हुआ है कौन से चैप्टर के कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उनको देखो और उसमें आपको मिल जाएगा. देन लोकेशन स्पेसिफिकली अगर पेपर्स को देख के देखा जाए तो 2023 और 23 के फाइनल पेपर की अगर बात करें तो कौन कौन से लोकेशन पूछे हैं. थायराइड के लोकेशन पूछे हैं विच इज कॉमन. ड्यूरा मैटर पूछा है, एमनियोटिक फ्लूइड पूछा है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्डिनी टेंडिनी, पोस्ट्रेट ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड पूछा है. सो मतलब इट्स अ जम्बल्ड अप थिंग, कौन से का कौन सा लोकेशन है. बट अगेन अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो पिछले वीडियो देखो, सब मिल जाएगा उसमें. देन इज सेक्शन बी व्हेन वी टॉक अबाउट. अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने की है, हर एक क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, अब इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 2023, 23 और 24 के सैम्पल पेपर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 1 +2 +2 +2 और +3. जो +3 वाला क्वेश्चन है, या तो वो डायग्राम बनाने के लिए दिया है या डायग्राम बना हुआ है उससे क्वेश्चंस पूछे हैं. फाइन, सो बोथ वेज दे हैव आस्क्ड. अब इसमें इन्होंने 2024 के सैम्पल पेपर में क्या किया है कि 2 क्वेश्चंस में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिए हैं और बाकी बच गए क्वेश्चंस में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम जो हाँ, अगर इफ वी टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस कोलेक्टिवली 2023 के सैम्पल पेपर, फाइनल पेपर और 24 के सैम्पल पेपर को देख के बात करें तो ट्रॉपिज्म वाला क्वेश्चन, फोटोट्रॉपिज्म वाला क्वेश्चन कॉमन है. प्लीज लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर करना. डायग्राम ऑफ स्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करना. ग्लोबल वार्मिंग पे जो टॉपिक्स है उसको जरूर करना. देन अगर 2024 के सैम्पल पेपर की बात की जाए तो इसमें वही अगेन दोबारा रिपीट हुआ है, स्पर्म का डायग्राम, फोटोट्रॉपिज्म और बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग वाला जो पोल्यूशन वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वो आएगा बहुत जरूरी, 5 मार्क में आए, 3 में आए, आएगा. देन 2024 की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 2023 का सैम्पल पेपर और फाइनल पेपर एग्जैक्टली सेम थे. जो सैम्पल पेपर था उसमें भी जितने भी ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है ये सब जम्बल्ड अप थे, कोई भी आप कह नहीं सकते थे कि ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से. और फाइनल पेपर में भी ऐसा ही था. लेकिन अगर हम 2024 के सैम्पल पेपर को देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से थे, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें सारे जो क्वेश्चन आर फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिर्फ जो लास्ट वाला डायग्राम है वो ब्रेन से है. फिर उसका क्वेश्चन नंबर 5 सारे के सारे क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम सेल डिवीजन, लेकिन सिर्फ जो डायग्राम है वो प्लांट हार्मोन से है. और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों जम्बल्ड हैं, मिक्स्ड अप है. मतलब 3, 4, 5, 6 ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको एक प्रॉपर चैप्टर में से आएंगे. अगेन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपीरेशन को एक यूनिट कंसिडर करो. मतलब अगर आएगा एक 5 मार्कर तो तीनों में से किसी एक में से आएगा, जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस से आए सारे क्वेश्चन. फाइन, सो यू कैन डू ट्रांसपीरेशन एंड रूट वाला जरा अच्छे से, ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर और रूट एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉरी. सेल डिवीजन पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 मार्कर सेल डिवीजन से है.
सिर्फ लास्ट में उन्होंने प्लांट हार्मोन। अब 7 और 8 जो है मिक्स्ड है, मतलब डायग्राम्स हैं, उसमें एवोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, पोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। अब यहाँ पे सबको देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, जो मेरा जिस्ट है, ब्रीफ है, एक तो जो मैंने आपको अभी पीछे जो भी चीज़ें बताई, उनको आप मार्क कर लो, जो आपने कर लिया है, और उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लो। उसके बाद आपने क्या चीज़ नहीं ही छोड़नी है, एवोल्यूशन वाला चैप्टर, पोल्यूशन वाला चैप्टर, उसको अच्छे से, छोटे-छोटे चैप्टर हैं, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? उसके बाद आपने एक और छोटा-सा चैप्टर है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अच्छे से रिवाइज करो, उसमें से आएगा ही 3-4 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा। सेल डिवीजन, छोटा-सा टॉपिक है, अच्छे से रिवाइज करो। फाइन। सो एक्सपेरिमेंट, जो ये फोटोसिंथेसिस वाले रेस्पिरेशन ट्रांस, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से, मेरे कहने का मतलब अगर आप सिर्फ ये चीजें भी कर लेते हो, देन ऑल्सो यू आर डन विद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर, ठीक है? तो ये वाली चीजों को आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ट्रॉपिज्म को नहीं छोड़ना है, जो एडिशन है, एक्चुअली नया एडिशन है वो, तो जो आपकी बुक में नए एडिशन है, पुराने सालों में नहीं थे, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो गया, जैसे प्लांट हार्मोन्स हो गया, सो प्लीज डू नॉट लीव देम, ठीक है? पॉल्यूशन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, 3 मार्क क्वेश्चन आएगा उसके अंदर से, ठीक है? पॉपुलेशन का क्वेश्चन थोड़े से कम है, बट देन डू दैट चैप्टर ऑल्सो अच्छे से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रट्टा लगा के अच्छे से कर लेने हैं। अब लास्ट मिनट रिवीजन है तो इसको अच्छे से कर लेना है। सो होप जो मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दिया, होप वट एवर आई हैव टोल्ड यू टुडे दैट विल हेल्प यू इन गिविंग द एग्जाम। प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स कि आपको एग्जाम कैसा हुआ, आपको कैसे मार्क्स आएंगे बाद में। प्लीज डू राइट टू मी। मेरा फ़ोन नंबर इज़ मेंशन्ड ऑन द चैनल, उस फ़ोन नंबर पे आप पेपर भेज सकते हो मुझे, अपना बोर्ड का पेपर जो हुआ है, प्लीज़ शेयर दैट पेपर विद मी सो दैट आई कैन ऑल्सो सी, एंड आई विल ऑफ कोर्स बी टॉकिंग अबाउट दैट पेपर अगेन। एंड प्लस यू कैन ऑल्सो कॉमेंट, अपने मेरे को उस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई बैक करूँगी। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, नहीं खराब हुआ है, या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, व्हाटएवर, सो प्लीज़ डू दैट। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी ये फ़ायदा हो लास्ट मिनट। एंड जो 9th में आने वाले बच्चे हैं, प्लीज़ टेल देम कि हम ग्रेड 10th के वीडियोज़ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। आप अगर 11th में बायो रखने वाले हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द अदर चैनल, बायोलॉजी नीट इज़ ईजी नाउ। वो चैनल के ऊपर, लोगो के ऊपर दिया, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें 11th के वीडियोज़ हैं, जिस पे भी अब कंटिन्यूअसली वीडियोज़ विल बी डन। So keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.